wave that is sweeping across the country. The Indian Meteorological Department has forecasted widespread heat wave-like conditions over the next few weeks as well. We're of course reeling under scorching temperatures over the last few weeks, but of course considering that we've just entered June, the situation is likely to prevail till July, till monsoon of course hits North India as well. Meanwhile, several states including Punjab, Haryana, Delhi, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra have been affected by the heat wave as well. Yesterday itself, Prime Minister Modi had chaired a high-level meeting to assess the situation and preparedness for when the monsoon would strike. But of course, reports are trickling in from across the country that people are now suffering due to heat strokes. They are suffering from dehydration, and several deaths have also taken place in the last few weeks. The reported death toll is now at 211 this summer. So of course situation is now getting very serious on the ground. We urge people to exercise caution, carry water bottles with them, carry ORS packets in case of emergency as well, and to cover themselves up before going out if need be. Meanwhile, I'm being joined by a host of my colleagues from across the country. In the national capital, Mehendi Garg in Lucknow, Ravi Kumar in Mumbai, Prathamesh in Noida, Rajat Kumar in Jaipur. I'm being joined by Raza Ullah. Meanwhile, first up, I'd like to go to Mehendi, who's in the national capital. Mehendi, you've been reporting from the ground over the last few days for the elections as well. You've been standing under the scorching sun, giving us timely reports every hour. How has it been like? You've spoken to countless people. You've spoken to those voters also who would come out and cast their votes despite the heat. And how is it on the ground like today? Are we expecting some sort of respite in the next few days, or the same temperatures to continue? Well, yes, Pia, I am on ground from a lot of days right now, and people on the ground are suffering from this scorching heat, and the situations right now in Delhi NCR is very alarming as the temperatures are rising above 50 degrees of Celsius in Delhi NCR's area if we talk about the Mungeshpur or the Najafgarh areas. But right now I am in central Delhi, and the temperature right now at 9:30 AM is 36 degrees Celsius, and earlier in the days we saw that elections happened in Delhi, but when we talked to people in the election timings also, they were very much in a problem, and they were, facing a lot of problems due to the scorching heat and this rising temperature. And right now also, this problem remains continuous, because if we talk about the IMD or the experts, they are still saying that no relief will be there in the upcoming days also, or in the upcoming weeks rather, because it has been predicted by the IMD that monsoon will hit Delhi NCR in the end of the June or in the start of the July. So right now people in the Delhi are facing a lot of problem. We'll show you the visuals also, that it can easily seen on the people's faces that they are in a lot of problems right now due to the scorching heat and this rising temperatures, because 50 degrees of Celsius of temperature, Pia, is not at all a small deal. It's a very big deal, and not only people, but if we talk about other animals, the birds, everyone is getting harmed by this scorching heat. And if we talk about the preparations, then the Delhi government has also taken this situation seriously, and earlier in the days a meeting has happened when Saurabh Bhardwaj took a meeting, and several precautions or several guidelines have been made by the Delhi government also. And later in the day, as in yesterday, we all saw that how Prime Minister Narendra Modi, after coming back from his meditation from Kanyakumari, he take this matter
into concern and he hold a meeting because this heat wave is a very problematic and alarming situation right now, and not only in Delhi PR but all over the country. This problem is creating a lot of deaths also, because the number of deaths is getting increased day by day, whether in Delhi NCR or other areas which are more heated up due to the scorching heat. And right now at 9:30 am the temperature is 36 degrees Celsius, but as soon as the day goes up, or around 12 to 3 p.m. The maximum temperature that is being observed in the Delhi NCR area is crossing 48 degrees Celsius overall, but the maximum temperature that has been observed in Delhi NCR areas have crossed the level of 50 degrees Celsius, and in some areas like I told earlier also Mungeshpur and Najafgarh areas, temperature was around 52 to 53 degrees of Celsius, because those areas were considered to be the outside of the Delhi NCR area. So people there are facing a lot problems because of this scorching heat. And also whoever is watching in NewsX and all the viewers of NewsX, it will be our duty to say all of them also to take care of them, to take water properly, to hydrate their body and take care of their health, because this is a very alarming situation. They should not, you all should not let your body get dehydrated or get heat stroke, because it will create a lot of problems. So keep your water bottle with you, keep ORS with you, or if only something important comes up, then only come out of your houses, because the temperature is very high, and this can create a lot of health problems to the people. Over to you, Pia. Indeed, it is important to exercise caution at this point, but let's also hop across to Lucknow in Uttar Pradesh, where my colleague Ravi Kumar joins us. Ravi, it's summer vacations at the moment for the school children, but work does not stop for professionals. What are the guidelines issued by the Yogi Adityanath government as far as Lucknow is concerned, and maintaining vigil is concerned, to battle out these heat strokes and heat waves that are now sweeping across North India? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी कई दिनों से हो रही है और दिन भर तापमान में बढ़ोतरी रहती है, ऐसे में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। सड़कों पे दिन में सन्नाटा रहता, क्योंकि जो तापमान है वो किसी जिले में तो 48 डिग्री 49 डिग्री तक जा पहुंचा था, वहीं 44 45 46 डिग्री तक जा चुका था। लखनऊ की अगर बात की 43 44 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है, और रात में उमस भी होती है और बिजली की आवाजाही से लोगों को बेहद ही परेशानी हुई, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और साफ तौर पर जो बिजली कटौती पर रोक लगाने का ऐलान किया, और जाहिर है कि साफ कर दिया कि बिजली कटौती है वो बेवजह ना की जाए। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी हो रही है, उसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य महकमे की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, जितने भी अस्पताल हैं उनमें सारी व्यवस्थाएं की जाए, ताकि जो भी ORS काउंटर है वो बनाया जाए, और अगर लोग इस गर्मी की वजह से बीमार भी अगर होते हैं तो उनको समुचित इलाज किया जा सके। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग हैं वो जब बहुत गर्मी होती है दिन के वक्त में, तो अगर बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो घरों से ना ही निकले, छाँव का सहारा लेते रहें, पानी समय समय पर पीते रहें और अपने आप को ढक के रखें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये गर्मी है बढ़ी हुई है, सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक है ये भी साफ हो गया है। और जिस तरह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हुई है उससे लोगों को दिक्कत बनी हुई है, और जाहिर है सरकार ने जरूर इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया है। ज़्यादातर स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, वहीं सुबह से जो स्कूलों का संचालन भी हो रहा है तो दिन होते होते उनकी छुट्टी कर दी जाए। फिलहाल दिन के वक्त में जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी होती है उस वक्त लोगों ना ही निकले, लोग घरों से बाहर अगर बेहद जरूरी ना भी हो तो ना निकले, ऐसी साफ तौर पर हिदायत दी गई है। लोगों से अपील की गई है लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत पहुंचा सकती है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 2 से 3 दिनों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है कहीं कहीं जगह पर, और अभी भी मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर है, लेकिन अगर हम बात करें दिन के वक्त में तापमान में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है जिसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिलहाल 1-2 दिन अभी थोड़ी सी राहत की उम्मीद जरूर है, लेकिन सुबह और शाम के तापमान में कमी है, लेकिन रात के में तापमान में कमी जरूर रहती है, लेकिन जो उमस होती है उसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ की अगर बात करें 34 डिग्री के आसपास अभी तापमान है, और दिन होते होते करीब 42-43 डिग्री के आसपास चला जाता है, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा रहता है, बाजारों में भी खामोशी सी रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, और दिन भर जो आसमान से आग बरसती है धूप की शक्ल में, वो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का सामना कराती है, और जिसकी वजह से सड़कों पर ज़्यादातर सन्नाटा ही वो पसरा हुआ नजर आता है। जी
Indeed, and let's also take a look at another key city in Uttar Pradesh itself, Greater Noida, where my colleague Rajat Kumar is standing by. Rajat, it seems that you are standing under the sun this morning, of course, battling out the heat, still reporting for us. What's taking place in Greater Noida? देखिए, बिल्कुल अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, जो कि दिल्ली सटा हुआ क्षेत्र है, अगर 2 दिन पहले की बात की जाए तो बारिश हुई। बारिश के बाद अब जो माहौल है, उमस भरी गर्मी कह सकते हैं। लोग हैं वो घरों में कैद हो चुके हैं। ग्रेटर नोएडा, नोएडा वो क्षेत्र है जहां पर लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकलकर अपने नौकरी, अपने दफ्तर के लिए जाते हैं, तो लोगों को हीट का सामना करना पड़ता है। अगर हम सुबह की बात की जाए, सुबह जैसे ही अगर हम टेम्परेचर चेक करें तो लगभग 35-40 के आसपास देखा जाता है। तो कह सकते हैं कि हीट वे है, पूरा उत्तर भारत चपेट में है। प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि अगर आपको बेहद जरूरी काम है तो आप सुबह शाम निकलें, अन्यथा आपका जो काम है वो किसी और माध्यम से कर सकते हैं। बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनको बाहर निकलने से पहले सोचें, क्योंकि जिस तरीके से अगर ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो आज का अभी का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि कहें तो खतरनाक श्रेणी में है। वही यातायात पुलिस द्वारा जो तमाम जो रेड लाइट हो गई, वहां पर एक साइड तैयार किया गया है। यहाँ कहें कि अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो रेड लाइट पर रुकना पड़ता है, तो उसके साइड पर ही रुकें, अर्थात क्योंकि जब गाड़ी है जब खड़ी रहती है 5 से 10 मिनट तक, तो उससे हीट प्रॉब्लम्स ना हो, उसको लेकर प्रशासन है वो अलर्ट है। साथ ही जो सड़कों पर पहले हम लोगों को सुबह शाम दोपहर में घूमता हुआ देखते थे, अब वो लोग हैं बेहद कम नजर आ रहे हैं। ज्यादातर जो घटना है, आग की बात की जाए तो आग लगने के मामले भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कुछ ज्यादा आ रहे हैं। हर 1 घंटे में आग लग रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गर्मी का प्रकोप है वो पूरे भारत में देखा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर हर तरफ से कहीं ना कहीं गर्मी से हाहाकार है। वही ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात की जाए, जो कि हाईटेक सोसाइटी बनी हुई है, वहां पर रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत गर्मी से है और लाइट है, जो कि भीषण गर्मी के बीच जब लाइट की कटौती हो ना, तो आखिर घर में जो फैमिली रहती है, बुजुर्ग रहते हैं, तो उनको किस तरीके से उस फ्लैट के अंदर रह रहे सोचिए। काफी लोगों ने विरोध भी किया है, लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे जो बिजली विभाग है उनको अलर्ट जारी कहा, उनसे कहा गया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी बिजली कटौती की समस्या है वो सामने ना आए। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अधिकतम देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी हाईटेक सोसाइटियां हैं, वहां पर बिजली कटौती की समस्याएं आ रही हैं। भाई बिजली विभाग का कहना है कि हर घर में एसी कूलर लगे हुए हैं, जिसके चलते जो लाइट का जो यानी कि जो ओवरलोड है उसको लिया जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो ट्रांसफार्मर से लेकर तमाम जो तकनीकी जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आ रही हैं। उससे निपटने के लिए जो यमुना प्राधिकरण की बात की जाए तो अलग से बिजली घर बनाने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया सरकार सामने। तो कहीं ना कहीं हीट वे है वो पूरे भारत में देखा जा रहा है, चाहे नोएडा की बात की जाए चाहे ग्रेटर नोएडा की बात की जाए। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो जरूर अलर्ट जारी किया है, लोग हैं वो सुबह शाम निकल रहे, अर्थात जो दोपहर का समय होता है ना, तो वो लोग अपने घरों में कैद होते हुए नजर आ रहे हैं। Indeed, we've seen a greater amount of electricity consumption. In fact, the national capital region has seen a record electricity consumption. Meanwhile, shifting focus to Rajasthan, where my colleague Razaullah is standing by. Razaullah, Rajasthan has seen temperatures touching and even exceeding 50 degrees Celsius as people are, of course, grappling with the heat wave. You're also standing under the sun. What's it like this morning? What are the guidelines that have been issued by the state government? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से अगर विश्व भर के 15 सबसे गर्म शहरों की बात की जाए तो उसमें राजस्थान के 8 बड़े शहर शुमार है, जिसके अंदर कोटा, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर सहित जो नागौर है वो यहाँ पर शुमार है। तकरीबन यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से 51 डिग्री टेम्परेचर के बीच में यहाँ पर दर्ज हो रहा है। बड़ी बात है कि जिस तरीके से देश ही नहीं बल्कि दुनिया के 15 शहरों के अंदर 8 शहर राजस्थान के हैं, तो कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा गर्मी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ गर्मी तो है ही, उसके साथ बिजली कटौती और पानी की कटौती की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। वहीं जिस तरीके से राजस्थान सरकार के अंदर जो सियासत है वो भी कहीं ना कहीं चरम सीमा पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से
जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से कई इलाकों के अंदर पानी की सप्लाई नहीं हो रही, बिजली की सप्लाई की कटौती होने की वजह से, क्योंकि राजस्थान अत्यधिक जो गर्मी है, क्योंकि राजस्थान को रेगिस्तान की कई इलाकों के अंदर है, तो ये कहा जा सकता है कि हालांकि कुछ इलाकों में पिछले 2 दिनों से बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। 9 तपे के बाद में जिस तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर बारिश हुई है, वहां कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। वहीं जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी लगातार जो है मीटिंग ली गई, और मीटिंग लेने के बाद जो तमाम विशेष दिशा निर्देश हैं वो तमाम अधिकारियों को दिए गए। उसके अलावा जिस तरीके से अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं सुबह 9:45 बजे का वक्त है, और मेरे चेहरे से पता लग रहा होगा किस तरीके से जो गर्मी और उमस है। हालांकि रात को जो आंधी और थोड़ी बहुत बारिश अलग अलग इलाकों में हुई थी, उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से लगातार टेम्परेचर ऊपर चढ़ रहा था, हालांकि अब राहत की बात यह कि मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के किसी भी इलाके के अंदर लू नहीं चलेगी। मतलब हीट वेव का जो असर है वो राजस्थान में नजर नहीं आएगा, लेकिन टेम्परेचर में गिरावट के साथ साथ रात को थोड़ा बहुत जो मौसम है वो खुशनुमा होगा, ये गाइडलाइन जारी की गई। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर चाहे बिजली कटौती की बात की जाए या फिर पानी कटौती की बात की जाए, उसको लेकर लगातार कई इलाकों में प्रदर्शन का दौर भी लगातार जारी है। वहीं जहां एक तरफ सत्तारूढ़ जो भाजपा पार्टी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो है प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो, इन तमाम लोगों के खिलाफ जो बयानबाजी है वो की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर रात को प्रदेश के कई इलाकों में जिस तरीके से बारिश और आंधी की वजह से जो मौसम खुशनुमा है, उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जो तमाम गाइडलाइन है वो जारी की गई। गर्मी की वजह से जो तमाम अस्पताल महकमे के चाहे डॉक्टर हो, नर्सिंग कर्मचारी हो या फिर अन्य स्टाफ हो, उन तमाम लोगों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई। तकरीबन 15 से 20 लोगों की मौत है वो अब तक इस हीट वेव के कारण हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह कि मौसम विभाग की तरफ से जो भी अलर्ट जारी किया गया है, उस अलर्ट के तहत हीट वेव यानी लू चलने की जो आशंका है वो कम बताई गई है। बहरहाल आने वाले दिनों में किस तरीके से टेम्परेचर रहता है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन बिजली कटौती और पानी कटौती होने की वजह से पूरे प्रदेश का जो लोग है उनका कहीं ना कहीं जीना दुश्वार नजर आ रहा है। बड़े बड़े इलाके हैं जहां पर जिला मुख्यालय की बात की जाए, अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं। गर्मी की वजह से लगातार जो आग लगने की वारदातें हैं उनके अंदर काफी ज्यादा जो है इजाफा हो रहा है, काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि दमकल महकमे को भी, फायर जो महकमा है उस महकमे को भी काफी ज्यादा जो है एक्टिव मोड पे रखा गया है। फिलहाल आने वाले दिनों में किस तरीके से टेम्परेचर रहता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फायर महकमा, अस्पताल महकमा और जलदाय विभाग, इन तमाम विभागों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक्टिव का नतीजा ये है कि जिस तरीके से अस्पताल में जब जा रहे हैं तो बेहतरीन जो सुविधा है वो अस्पताल में मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन लगातार जो सवालिया निशान है वो जलदाय विभाग और बिजली विभाग पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी Indeed, and let's also take a look at what's taking place in Mumbai. While Mumbai is a coastal city, Prathamesh, I'd like to ask you, is there any relief due to this, or are you also witnessing these soaring temperatures as well? You expect the monsoon to hit sooner. So are there like forecasts at the moment predicting when it will come about? Yeah, correctly. If we talk about Mumbai, the temperature recorded here is 35 to 36 degree. Temperature has been recorded in Mumbai. And if we talk about Mumbai, the forecast says that there will be a high humidity situation. There is not like a heat wave situation in Mumbai or overall Maharashtra. As yesterday, if we talk about Nagpur, also in Nagpur, rain also took place yesterday, and also the people are getting a bit relief from the heat over in Mumbai. If we talk about Palghar, also in Palghar, also there is there is no such like a alert situation given in Palghar also. So all over Maharashtra, people are getting relief from the sun, and also there is nothing like a heat wave in Mumbai. And also even from the Maharashtra government, the advisory has been issued in the precaution that the people should take precaution and people shouldn't come out at 11 to 4, as because this is a situation, a precautionary situation, and people should drink water as soon as they as possible. They can keep their body. Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde has the meeting are also been held. Meeting are also be taking place over here, taking the precautionary of the heat waves. If the situation get more worse than this, the hospitals are taken under the observation, and they are said to be on the standby, as the people of the heat wave and the heat stroke are getting increased. So that's why the hospitals are given the strict instruction to be on standby.
All right, with that, I would like to thank all my colleagues. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.